everyone, this is me Visalata, and today I am going to teach you about noun, the origin of a noun and the definition of a noun. So first of all, noun, it is derived from three languages, means it is taken from three languages: Latin, from Greek, and from French. Latin people call nomen, Greek people call nomus, while French people call nomia. Nomen means naming of a word, and in Greek it is called nomus, so nomus means name, and nomia means identifying of a word. So it is taken from three languages. Number one, we have Latin, number second, we have French, and number third, we have Greek. In Latin it is called nomen, in French it is called nomia, and in Greek it is called nomus. Nomen means naming of a word, naming of a word. Nomia means identifying of a word, and nomus means name. नाउन जो है हमारे पास तीन लैंग्वेज से आया हुआ है, एक है लैटिन, एक है फ्रेंच, और तीसरा है हमारे पास ग्रीक। लैटिन में इसको कहते हैं नोमेन, फ्रेंच में इसको कहते हैं नोमिया, और ग्रीक में इसको कहते हैं नोमस। नोमेन का मतलब क्या है? नेमिंग ऑफ वर्ड। नोमिया का मतलब क्या है? आइडेंटिफाइंग ऑफ वर्ड, और नोमस का मतलब क्या है? नेम। Now, what is the definition of a noun? We have a lot of definitions of a noun. Means any naming word is called noun, naming for everything is called noun, or anything that can be seen, touched, heard, smelled, tasted, and felt is called noun. So we have a lot of definitions of a noun. So in here, our first definition is what? Any naming word is called noun, or anything that can be seen, touched, heard, smelled, tasted, and felt. That is called noun. So we have in here two types of definition. Any naming word is called noun, or anything that can be seen, touched, heard, smelled, tasted, felt, etc. That is called what? Noun. Now we have also another definition that is called, means the name for person, place or thing. When I was a child, जब मैं बच्चा था तो मैंने एक यही definition सीखी थी, the name of a person, place or thing. लेकिन एडवांस ग्रामर क्लास में हम क्या कहते हैं? The name of a person, place, things, animal, substances, qualities, quantities, title, profession, idea and an action. तो एडवांस ग्रामर में इसकी definition क्या होती है? Name for people, places, things, animals, substances, qualities, quantities, इसी तरह हमारे पास टाइटल, प्रोफेशन, आइडिया एंड एन एक्शन। तो इन सारे नेमों को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। अब पीपल में हमारे पास जिस तरह के हम कहते हैं मोहिब, जैसे कि हम कहते हैं अली, जैसे कि हम कहते हैं वली, तो ये क्या है? ये हमारे पास पीपल मीन्स पर्सन्स में आते हैं, तो ये सारे नाउन है। प्लेसेस में हमारे पास आता है कराची, करक, पेशावर। थिंग्स में आता है पेन, पेंसिल। एनिमल्स में आता है पांडा, स्टेलियन, मेयर। सब्सटेंसेस में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, और इसी तरह सोडियम। और ये जो हमारे पास क्वालिटीज है, इसमें हमारे पास आते हैं फेथ, ब्यूटी। क्वांटिटीज में आते हैं पाउंड, किलो एंड डजन।
टाइटल में आते हैं बूम बूम, प्रोफेशन में आते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आइडियाज में आते हैं गुडनेस, बैडनेस, एक्शन में हमारे पास आते हैं प्लेइंग, dancing and singing, etc. So in here we have name for people, places, things, animals, substances, qualities, quantities, title, profession, idea, and an action. So in here we have people. So in people we have Mohib, Ali, Wali. So in here we have places also. So that is called Karachi, Peshawar. In things we have pen, पेंसिल्स, एनिमल्स में हमारे पास पांडा आता है, स्टेलियन जो हमारे पास होता है, मेयर भी होता है, सब्सटेंसेस आते हैं, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, इसी तरह हमारे पास सब्सटेंसेस में भी आते हैं। ये जो क्वालिटीज है हमारे पास फेथ और ब्यूटी को जाहिर करते हैं, फेथ होता है, ब्यूटी होती है, वो भी हमारे पास नाउन होता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये जो ब्यूटी है ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं, ब्यूटीफुल। अब ये एडजेक्टिव है, शी इज ब्यूटीफुल। सो इन हियर इट शोज स्पीकर्स ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। सो उधर हमारे पास स्पीकर्स की ओपिनियन को जाहिर किया कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अब इधर हमारे पास ब्यूटी है, तो ब्यूटी क्या है, ये क्वालिटी को जाहिर करता है, तो इसलिए ये क्या है, नाउन है। इधर हमारे पास क्वांटिटी आती है, पाउंड आता है, किलो आता है और डजन आता है। तो एक डजन में हमारे पास 12 होती है। 1 डजन कंटेन्स 12 सिमिलर थिंग्स। टाइटल हो गए, तो हम जब किसी को टाइटल देते हैं, जैसे कि हमने शाहिद अफरीदी को टाइटल दिया है बूम बूम, मोहम्मद अली जिन्ना को दिया है कायदे आज़म, तो इसी तरह हम जिसको टाइटल देते हैं तो उसको भी हम नाउन कहेंगे। प्रोफेशन हो गए, तो प्रोफेशन में हमारे पास डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, इंजीनियर हो गए, सीएसएस ऑफिसर हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए, आर्मी ऑफिसर हो गए, तो वो सारे प्रोफेशन में आते हैं। आइडिया जो होते हैं हमारे पास गुडनेस हो गया, बैडनेस हो गया, तो इसी तरह ये हमारे पास आइडियाज होते हैं। और एक्शन जो है हमारे पास एक्शन, प्लेइंग जब हम खेलते हैं तो ये एक्शन है, डांसिंग है तो ये भी एक्शन है, सिंगिंग है तो वो भी एक्शन है। इधर हमारे पास आप लोग ये सोचेंगे कि ये जो है ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब जैसे दिखता है लेकिन फंक्शन एज अ नाउन करता है, तो उसको हम जेरंड कहेंगे। क्या कहेंगे, जेरंड कहेंगे। तो इसलिए क्या होता है, प्ले मींस वर्ब प्लस आईएनजी को हम क्या कहेंगे, जेरंड कहेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये जेरंड है, जो कि वर्ब की तरह दिखता है बट फंक्शन एज अ नाउन, लेकिन फंक्शन नाउन की तरह करता है। तो ये सारे जो है हमारे पास नाउन होते हैं। नाउ वी हैव सम रूट्स ऑफ नाउन। रूट्स ऑफ नाउन में हमारे पास केसेस ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, फॉर्म्स ऑफ नाउन एंड नंबर्स ऑफ नाउन आते हैं, और वो हम इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, लिसन टू मी केयरफुली एंड फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू वेरी मच।